السلام علیکم۔ انصاف نیوز نیٹ ورک پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نور اللہ جاوید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بھارت میں چل رہے جن گننا کی مردم شماری کی۔ 1888 میں برطانوی راج میں پہلی مرتبہ مردم شماری کی گئی تھی۔ اب 2027 میں 16ویں جن گننا ہو رہی ہے۔ پہلی مردم شماری میں کل 17 سوالات پوچھے گئے تھے اور 16ویں مردم شماری 2026 میں جو جن گننا ہو رہی ہے اس جن گننا میں کل 40 سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ سوالات کی تعداد اتنی زیادہ کیوں ہے، سوال یہ بھی نہیں ہے کہ آخر سوالات کی تعداد کیوں بڑھائی گئی ہے۔ سوالات جو اٹھ رہے ہیں وہ سوالات کی نوعیت پہ اٹھ رہے ہیں، کیونکہ 17 ایسے سوالات ہیں جن میں فرد کی شناخت سے متعلق سوالات کیے گئے ہیں، جس میں آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر، پاسپورٹ نمبر، آدھار کارڈ نمبر، پین کارڈ نمبر، والدین کی تفصیلات، آپ کے والد کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور ان کا انتقال کیا ہوا۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ آخر مردم شماری کے لیے اتنے حساس ذاتی ڈیٹا کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ محض عمومی سروے ہے؟ دراصل مردم شماری حکومت کے لیے ایک نقش راہ ثابت ہوتی ہے کہ کس علاقے میں کتنے اسکول ہیں، کتنے اسپتال ہیں، کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کتنے کالجز ہیں، اور اس علاقے کی بنیادی سہولات ہیں کہ نہیں، اور اس آبادی کی آبادیاتی ضروریات کیا ہیں، حکومت کو ابھی کیا کرنا باقی ہے۔ روایتی طور پر مردم شماری کے جو ڈیٹا ہوتے ہیں، اعداد و شمار ہوتے ہیں، انونیمس ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں، یعنی اس میں حکومت کو صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ کس علاقے کی آبادی کی اوسط اعداد و شمار کیا ہے، اس میں مخصوص افراد کی ذات یا شناخت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ 14 نئے یا ترمیم شدہ ایسے سوالات شامل کیے گئے ہیں جن میں بینک اکاؤنٹس، ڈیجیٹل خواندگی، کووڈ ویکسینیشن، موبائل نمبر، آدھار، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس کی معلومات شامل ہیں۔ اب یہیں پر جن گننا شماریات کے جو ماہرین ہیں وہ سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ حکومت کے لیے جاننا کافی ہے، حکومت کے لیے جاننا تو ضروری ہے کہ کس کے پاس پاسپورٹ ہے، کتنے لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، کتنے لوگوں کے پاس گاڑی ہے، لیکن حکومت کے لیے کیا یہ جاننا ضروری ہے کہ پاسپورٹ نمبر کیا ہے، ڈرائیونگ لائسنس نمبر کیا ہے، اگر گاڑی ہے تو کون سی گاڑی ہے، اس گاڑی کا نمبر کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ بھارت جیسے ملک میں جہاں ڈیٹا سیکیورٹی کو لے کر کئی مرتبہ سوالات کھڑے کیے، اس مرتبہ 16ویں جو مردم شماری ہے پہلی مرتبہ بھارت کی تاریخ کا مکمل ڈیجیٹل مردم شماری ہے، جس میں تقریباً 30 لاکھ سے زائد انومیریٹرز جو ہیں، مردم شماری کرنے والے، ڈیٹا جمع کرنے والے اپنے فون پہ یا ٹیبلز کے ذریعے کروڑوں شہریوں کے ڈیٹا آن لائن درج کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ حساس ڈیٹا جو ہم فراہم کر رہے ہیں یہ مکمل طور پر محفوظ رہے گا؟ یہ سوال اس لیے بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں بھارت میں سائبر سیکیورٹی کے کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس میں ذاتی ڈیٹا لیک ہو گئے ہیں اور اس کو کھلے عام فروخت کیے گئے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے بھارت میں بڑے پیمانے پر ڈیٹا لیک ہونے کے 3 بڑے واقعات کو پیش کرنے جا رہے ہیں، کیے گئے ہیں۔ 2018 میں ٹائمز آف انڈیا اور دا ٹریبیون جو دونوں مشہور انگریزی اخبار نے رپورٹ شائع کیا کہ ایک واٹس ایپ گروپ پر محض 500 روپے میں ایسا لاگ ان پاسورڈ بیچا جا رہا ہے جس کے ذریعے کسی بھی شہری کے نام، پتہ، فون نمبر، شناختی تفصیلات آن اسکرین ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 500 زیادہ روپیہ دیں تو اس ڈیٹا کو آن لائن پرنٹ کرنے کا بھی سہولت فراہم ہو جاتی ہے۔ بعد میں اس کی جانچ کی گئی اور اس کی خامیوں کو دور کیا۔ دوسری مثال 2023 کا کوون ڈیٹا پورٹل کیس ہے۔ جون 2023 میں یہ رپورٹ سامنے آئی کہ ٹیلی گرام جو واٹس ایپ کی طرح ایک آن لائن چیٹ ہے، اس پہ ایک خود کار روبوٹ کے ذریعے کووڈ ویکسینیشن کروانے والے عام شہریوں سے لے کر ملک کی اہم سیاسی شخصیات، صحافی، پروفیسرز اور
टेक्निक माहिरीन के नाम, पासपोर्ट नंबर, तारीख पैदाइश, वैक्सीनेशन सेंटर के डेटा लीक हो रहे हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इसकी तहकीकात की तो ये मालूम हुआ कि किसी पुराने लॉगिन API की कमजोरी की वजह से ये डेटा लीक हो रहा है। तीसरी मिसाल 2023 का ICMR का तारीखी रखना है। अक्टूबर 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि साइबर सिक्योरिटी फोरम ने इंकशाफ किया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के कोविड वैक्सीनेशन टेस्टिंग के डेटाबेस जिसमें 81.5 करोड़ 800 मिलियन शहरियों के डेटा मौजूद थे को फरोख्त किया जा रहा है, डार्क वेब पर फरोख्त किया जा रहा है। ये मुल्क की तारीख का, भारत की तारीख का सबसे बड़ा डेटा लीक था। इसकी जांच मरकजी एजेंसियों को करनी पड़ी और कई सारी खामियां सामने आई। अब जरा सोचिए कि जब मरदमशुमारी 2027 के तहत एक ही पोर्टल पर, मरकजी डिजिटल पर आपका नाम, आपका पता, आपका राशन कार्ड, आपका फोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपकी गाड़ी नंबर, आपका कोविड वैक्सीनेशन, आपके खानदान की तफसील एक साथ जमा हो जाए तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी के माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल में सबसे बड़ा खतरा रिकंस्ट्रक्शन अटैक का होता है। सवाल ये है कि रिकंस्ट्रक्शन अटैक क्या है। माहिर बताते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन अटैक एक ऐसा साइबर अमल है जिसमें हैकर्स या गैर मोतबर अनासिर मुख्तलिफ जगहों से हासिल करता छोटे छोटे गैर तस्दीक शुदा अलग थलग डेटा टुकड़ों को एक जगह मिलाकर किसी भी आम शहरी के इंतहाई बारीक और तफसीली हदफ का प्रोफाइल तैयार कर लेते हैं। जब किसी डिजिटल सिस्टम में शहरी की तमाम ज़ाती और माशी मालूमात इकट्ठी हो जाए तो एक छोटा सा सिक्योरिटी खामी या सिक्योरिटी की गलती आपकी पूरी जिंदगी और आपकी शनाख्त नामालूम हाथों में चली जाने का खतरा है। मरदमशुमारी को लेकर जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि उमूमी सर्वे के नाम पर जो डेटा मांगे जा रहे हैं आखिर उसके पीछे क्या मकसद है। यही वजह है मरदमशुमारी के दौरान ही सवाल ये खड़ा होने लगा है कि क्या हुकूमत आगे जाकर इन डेटास को NPR NRC के लिए इस्तेमाल करेगी। सवाल ये भी है कि NPR और NRC क्या है, दोनों में फर्क क्या है। अब समझिए कि NPR दरअसल मुल्क के रहने वाले तमाम शहरियों की रहायशी डेटा को जमा किया जाता है। इसमें यह मतलब नहीं होता कि कौन भारत का शहरी है और कौन भारत का शहरी नहीं है। इस NPR का बुनियादी मकसद हुकूमत की मनसूबाबंदी, फलाही स्कीमों के लिए डेमोग्राफिक डेटा तैयार करना होता है। NRC इसके बिल्कुल बरक्स है, उसमें सिर्फ कानूनी और तस्दीक शुदा भारत के शहरियों की फहरिस्त तैयार की जाती है और गैर मुकीम और गैर कानूनी तौर पर भारत में रहने वाले अफराद की शनाख्त की जाती है। NPR में जो डेटा जमा किए जाते हैं वो आपके बताने पर जमा होता है, जबकि NRC में शहरी को कानूनी दस्तावेज सबूत के तौर पर, अपनी शहरियत के सबूत के तौर पर पेश करने होते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर मरदमशुमारी की इस दौर में, जब मरदमशुमारी पूरे भारत में हो रहा है, उसमें NPR और NRC की बहस क्यों शुरू हो गई? उसका जवाब छुपा हुआ है सिटीजनशिप रूल 2023 में। यानी कानूनी जवाबित के मुताबिक NPR को NRC की तैयारी के लिए एक बुनियादी कदम के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। जब NPR का डेटा जमा होता है तो लोकल रजिस्ट्रार उसकी तस्दीक करता है। अगर कोई डेटा, कोई मालूमात से वो मुतमईन नहीं होता है उसको आगे बढ़ा देता है और वही आगे बढ़ाने के बाद वही अमल बाद में उस शख्स की शहरियत की जांच का मामला बन जाता है। 2020 में जब मरकजी हुकूमत ने NPR का ऐलान किया तो उसमें उस फॉर्म में एक ये भी मालूमात थी कि आपको अपने वालिदैन की तफसीलात जैसे सवालात शामिल थे कि आपके वालिद कहाँ पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, कब पैदा हुए और अगर उनका इंतकाल हुआ है तो कहाँ हुआ है। ये सवाल पूछा गया था। उस वक्त ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये NPR में खानदान की तफसीलात मांगकर क्या हुकूमत NRC की तरफ कदम बढ़ा रही है। उसी दौर में
2020 के दौर में ही सीए पास हुआ था, उसको लेकर काफ़ी हंगामे। 2019 में सीए पास हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए कि हम इसके बाद एनआरसी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और उसी दौर में एनपीआर का भी ऐलान किया गया था, उसको लेकर काफ़ी हंगामा आई हुई और एनपीआर के फॉर्म में वालदैन की तफसीलात मांगी गई थी। क्योंकि अब दोबारा मरदमशुमारी में ये तफसीलात मांगी जा रही है, तो इसीलिए ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर मरदमशुमारी जिसमें गुमनाम डेटा जमा किया जाता है, उसमें एनपीआर के डेटा को अब कानूनी नुक्ते नज़र से देखिए कि मर्द सेंसस 1948 और एनआरसी सिटीजनशिप एक्ट 1955 1955 दोनों अलग अलग चीज़ हैं। मर्दमशुमारी में डेटा कानूनी तौर पर राज में रखा जाता है और ये किसी भी चीज़ कभी भी कोर्ट या शहरियत की जांच के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जब सिटीजनशिप एक्ट, जब सेंसस 1948 के एक्ट के मुताबिक सेंसस के लिए, सेंसस में जो डेटा जमा किया जाता है वो किसी जांच के लिए नहीं होता है, न किसी सबूत के लिए होता है। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर हुकूमत इतने हसास ज़ाती डेटा को क्यों जमा कर रही है। यही वजह है कि आज कांग्रेस के जो तर्जुमान हैं जयराम रमेश, मेंबर पार्लियामेंट भी है, उन्होंने ट्वीट करते हुए कई सारे सवालात खड़े किए हैं। पहला सवाल उन्होंने यही खड़ा किया है कि आखिर ज़ाती डेटा को क्यों मांगा जा रहा है। दूसरा सवाल उन्होंने ये खड़ा किया है कि वज़ीर आज़म ने अप्रैल 2026 में वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि जब अगली मरदमशुमारी होगी तो उसमें ज़ात के बारे में मुकम्मल डेटा जमा किया जाएगा, लेकिन इस मरतबा ये सवाल गायब है, बल्कि ज़ात के सर्वे को गायब कर दिया गया है और दूसरी चीज़ों को, दूसरे सवालात को ज़्यादा तफसील से मांगे जा रहे हैं और सीपीआईएम ने भी सवालात खड़े किए हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मरदमशुमारी के लिए इस जो तफसीलात हैं क्यों ज़रूरी है। हुकूमत ने आखिर इसके लिए शहरियों को एतमाद में क्यों नहीं लिया। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है और हमारा ये मालूमाती कानूनी वीडियो आपको कैसा लगा, हमें लिखकर कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।